Parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject Science, Chemistry, Chapter number 5 and Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. Today in this lecture we will do the question answers of our chapter number 5 and the first category is multiple choice question. And the first question is air is an. That means what is air? Air क्या है? First A element, B compound, C mixture and D none of this. So the right answer is mixture. Second, main constituent in air is, that means you know very well that the air is composed of many gases. Among that gases, which gases is present in large amount? एयर के अंदर जो बहुत सारी गैसेस मिक्सचर जो प्रेजेंट होता है गैसेस का, उसमें से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? A nitrogen, B oxygen, C argon and D water vapor. So the right answer is A nitrogen. Third, in desert area water vapor contained in. That means in the desert area the water vapor present in air, the amount of water, what is the amount of water vapor present in the air? डेजर्ट के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट हवा के अंदर कितना होगा या क्या होगा? ए हाई, बी लो, सी कांस्टेंट, डी नन ऑफ दे. सो द राइट आंसर इज लो. लो मीन्स कम होगा, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी या सूखा होता है. Fourth, which of the following is a variable component of the air? You know very well that in air all the gases has fixed percentage in that, and most one or two components in the air is the variable. That means the amount can be changed from time to time. Examples are water vapor and the dust particle. Let's see. एयर के अंदर ऐसा कौन से कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ गैस होती है, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, जो जिनका अमाउंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है? ए नाइट्रोजन, नो, बी ऑक्सीजन, सी वाटर वेपर एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड. सो द राइट आंसर इज वाटर वेपर. वाटर वेपर का अमाउंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या प्लेस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है. Which of the following represent the correct order of the abundance of the various gases? That means you have to arrange the gases from the in the ascending order. That means which gas has the large major part in the air, then low, then go less. आपको इसको ज़्यादा से कम में क्या करना है, इन गैसेस को अरेंज करना है. मीन्स सबसे ज़्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है, उससे कम कौन से, उससे कम कौन से, लास्ट में सबसे कम वाली. फर्स्ट इज नाइट्रोजन. यस, नाइट्रोजन इज द मेजर. देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. बी इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन. एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन. So the right answer is B. Nitrogen is the major, 78%. ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है एयर में? और नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. 6. द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज. दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर? ऑक्सीजन का कितना अमाउंट एयर के अंदर प्रेजेंट है? ए 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, बी 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, सी 1/5 ऑफ द वॉल्यूम एंड डी 1/3. सो द राइट आंसर इज 1/5 ऑफ द वॉल्यूम. 7. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन इज. कंबशन मीन्स फायर. दैट मीन विच गैस सपोर्ट द फायर. कौन सी गैस आग लगने में हेल्प करती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी A and B both. So the right answer is A, oxygen. 8. Which gas make up the major part of the air? Which gas is present in the largest amount? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में? ए नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी हीलियम एंड डी क्रिप्टॉन. सो द राइट आंसर इज ए नाइट्रोजन.
Ninth, nitrogen is used in, that means what is the use of nitrogen? Nitrogen कहाँ use होती है? In electric bulbs, B as a refrigerator, C in preserving tinned foods and D all are correct. That means इलेक्ट्रिक बल्ब में या फिर रेफ्रिजरेटर में या फिर पैक्ड खाने के अंदर नाइट्रोजन यूज़ होती है, या फिर लास्ट वन इज़ ऑल आर दी करेक्ट. सो द राइट आंसर इज़ इन प्रिजर्विंग टीन फूड. मीन्स जो पैक्ड फूड आते हैं, जिन पैकेट फूड आते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो क्या करती है, खाने को प्रोटेक्ट करने का या प्रिजर्व करने का काम करती है. 10th, if a burning splinter is taken close to the gas jar filled with the oxygen, then the gas form is. That means a splinter is like of burner. If a burner if you take close to the gas which is of oxygen, then what will happen? मतलब एक जलता हुआ बर्नर अगर आप गैस ऑक्सीजन से भरे हुए जार के पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? जब ऑक्सीजन और एयर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड. सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, सी. 11th, in which of the following cities would there will be maximum water vapor in the air on a sunny day in December? That means in the month of the December, in which city the water vapor in the air would be the maximum? कौन सी दिसंबर के महीने में कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर हवा के अंदर प्रेजेंट होगा? सनी डे मीन्स जब पूरा सूरज निकला हुआ एकदम साफ मौसम होगा. ए श्रीनगर, दी दिल्ली, सी भोपाल एंड डी मुंबई. बिकॉज मुंबई कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओशन है, इस वजह से मुंबई. 12th, windmill is used in. Windmills are like a large and huge fan which run with the help of the air. Windmill क्या होता है? एक लंबे पंखे जैसे बहुत सारे एक डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, हवा के जो दबाव की वजह से गोल गोल घूमते हैं. उससे क्या उसका क्या यूज़ है? टू रन फ्लो मिल, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड डी ऑल ऑफ दिस. मतलब फ्लोर मिल्स मतलब बड़ी बड़ी जो आटा बनाने की जो मशीन्स है, जो फैक्ट्रीज़ है, उसको चलाने में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, या फिर ट्यूबवेल में से पानी निकालने में. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. 13, लेयर ऑफ एटमोसफियर दैट एब्जॉर्ब यूवी रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड. दैट मीन्स the ozone layer. We are talking about the ozone layer. The ozone layer present in which layer of the atmosphere? कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो क्या करती है? सन से आने वाली हार्मफुल रे को एब्जॉर्व करती है. ए थर्मोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर एंड डी एक्सोस्फेयर. सो राइट आंसर इज बी स्ट्रेटोस्फेयर. 14, the atmospheric layer nearest the earth surface is the. That means the first layer is the. कौन सी सबसे पहली लेयर है? ए स्ट्रेटो, बी आइनोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर, डी मीजोस्फेयर. राइट आंसर इज सी ट्रोपोस्फेयर. 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर? दैट मीन्स विच लेयर कम्स आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर एंड डी थर्मोस्फेयर. सो द राइट आंसर इज बी स्ट्रेटोस्फेयर. 16, oxygen is consumed from the atmosphere in the following process. Among the four process given below, in which process the oxygen would be used? मतलब नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ हो सकती है? ए combustion of fuel, बी absorbed by green plant during photosynthesis, सी biological fixation by symbiotic bacteria and डी cultivation of land. ए combustion means किसी भी चीज़ के जलने में हेल्प करेगी ऑक्सीजन, या फिर फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट एब्जॉर्व करती है जबकि CO2 एब्जॉर्व करती है. बायोलॉजिकल फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया क्या करते हैं?
एक बायोलॉजिकल फिक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया गैसेस को अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. और कल्टिवेशन ऑफ लैंड मीन्स खेती बाड़ी. सो द राइट आंसर इज ए कंबशन ऑफ फ्यूल. 17. A gas present in air and useful in making fertilizer. That means this gas is present in air and mainly used in making the fertilizer. कौन सी गैस फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होती है? A O2, B CO2, C N2 and D argon. So right answer is C N2 nitrogen. 18. Photosynthesis by plant release. During the photosynthesis which gas is released? कौन सी गैस photosynthesis process में रिलीज होती है? A CO कार्बन मोनोऑक्साइड, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन एंड D ऑक्सीजन. So the right answer is oxygen. 19. The rate of photosynthesis is very high during. That means the speed of the plant to process the photosynthesis process is high during when. मतलब photosynthesis सबसे ज़्यादा कब होता है? A daytime, B night, C evening and D midnight. So the right answer is A daytime. 20. Photosynthesis increase concentration of oxygen in air which is necessary for all. That means by the photosynthesis process oxygen gas the percentage of oxygen gas is maintained in the air which is very important for. जो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी फॉसिल्स, सी बर्ड्स ओनली एंड डी एनिमल्स ओनली. सो द राइट आंसर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. 21. Glucose and oxygen combine to form CO2 water plus. That means the glucose is a compound, is a type of carbohydrate, and when oxygen they both react they form the CO2 and the water and one more product also, and that product is जब ग्लूकोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट है. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और क्या बनाते हैं? ए ऑक्सीजन, बी एनर्जी, सी नियॉन एंड डी नाइट्रोजन. सो बी एनर्जी. Which of the following component of air cannot be taken directly by the plant? That means which gas cannot be used directly by the plant. मतलब कौन सी गैस है जो डायरेक्टली प्लांट के थ्रू यूज़ नहीं हो सकती? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज बी नाइट्रोजन. 23. What happen when the human burn oil and other fuel? That means when you burn anything, what happen? जब आप ऑयल और कोई भी अदर फ्यूल पेट्रोल डीजल जलाते हैं तब क्या होता है? ए ऑल एनिमल डाई, बी CO2 इज रिलीज, सी क्वालिटी ऑफ एयर विल इम्प्रूव एंड डी CO2 इज नॉट रिलीज. एनिमल मर जाते हैं, CO2 रिलीज होती है, या क्वालिटी एयर की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, या CO2 रिलीज नहीं होती. सो द राइट आंसर इज बी CO2 इज रिलीज. 24. लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड. दैट मीन्स ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन व्हाट हैपन. एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? ए फीवर, बी हेडेक, सी नोजिया एंड डी परमानेंट लॉन्ग डैमेज. ए फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया मीन्स उल्टी जैसा या वॉमिट हो सकती है, या परमानेंट लॉन्ग डैमेज या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो लाइफ टाइम हमारे अंदर रहती है. सो द राइट आंसर इज डी परमानेंट लॉन्ग डैमेज. 25th causes of air pollution include. That means what are the reason of air pollution? एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है? ए क्लोरोफ्लोर कार्बन, बी कार्स एंड मोटरसाइकिल व्हीकल्स, सी पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री एंड डी ऑल ऑफ दिस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का नाम है, या कार या मोटरसाइकिल्स, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज उनसे निकलती क्या निकलती है हार्मफुल गैसेज जो क्या करती है? एयर पॉल्यूशन. सो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस. 26. The true statement about greenhouse effect is that means among the four which one is correct. नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्या सही है? ए कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेज कॉज बाय CO2,
C caused by CO2, CH4, NO2 gases and D none of this. So the right answer is caused by CO2, CH4, NO2. इन सब गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. 27. Which is an example of natural air pollution? एयर पॉल्यूशन का नेचुरल रीज़न क्या है? ए एसिड रेन, बी व्हीकल एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, सी वॉल्केनिक इरप्शन एंड डी बर्निंग फ्यूल. सो द राइट आंसर इज वॉल्केनिक इरप्शन. उसमें से जो गैसेस निकलती है वो क्या करती है? एयर पॉल्यूशन की वजह बनती है, जो कि नेचुरल है, अपने आप नेचर में होता है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट डैश इज अ डैश इन एयर सपोर्ट बर्निंग. दैट मीन विच गैस सपोर्ट बर्निंग? कौन सी गैस बर्निंग को सपोर्ट करती है? ऑक्सीजन. सेकेंड, एयर ऑक्यूपाइज मास एंड हैज़ स्पेस. एयर क्या है? मास ऑक्यूपाई करती है. सॉरी, इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज इन वाइस वर्सा. एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. एयर का क्या है? मास. स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका क्या है? मास. थर्ड, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. फोर्थ, वी ऑल नीड डैश फॉर द रेस्पिरेशन. दैट मीन्स वी नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग. सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. फिफ्थ, द थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स द लेयर ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के पूरे चारों तरफ एक लेयर है एयर की, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ट्रू फॉल. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस. क्या एयर गैस का मिक्सचर है? यस, इट्स ट्रू. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. क्या कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में? फॉल्स. सी, नाइट्रोजन इन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर. क्या नाइट्रोजन से फर्टिलाइज़र बनता है, या नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फर्टिलाइज़र का? ट्रू. फोर्थ, प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम ओनली. क्या सिर्फ प्लांट ब्रीथिंग डे टाइम में ही करते हैं, रात को नहीं करते? नो, इट्स अ फॉल्स. And fifth, the air we breathe out and rich in oxygen. That means the gas we release out from the body is of oxygen. क्या जो हम गैस अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन होती है? नहीं, इट्स अ फॉल्स. मैच द कॉलम. कॉलम ए, मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. दैट इज़ नाइट्रोजन. सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड. डस्ट पार्टिकल कंपोजिशन वेरीज. दैट मीन्स इन एयर डस्ट पार्टिकल की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है. फॉर रेस्पिरेशन वी रिक्वायर ऑक्सीजन. एंड एक्वेटिक एनिमल यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन. एक्वेटिक एनिमल पानी में घुली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. हियर वी कंप्लीट आवर एक्टिविटीज. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.